Shri Govinda Gopinata Adhana Mohana. आप पोस्ट है ना स्पॉटलाइट सर एक लिंक की कम से कम करना पड़ेगा Shama Kundara Giri Govardhana. Shama Kundara Giri Govardhana. Kalindiya Muna Jaya Jaya Mahavana. Kalindiya Muna Jaya Jaya Mahavana. Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavana. Jaya Radhe Jaya Jaya Vrindavana. Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavana. Jaya Radhe Jaya Krishna. इधर थोड़ा सा सही माता इधर बिठाइए माता को
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody, please sing. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare
Ram, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan. Shri Govinda Gopinath Nadana Mohan. Shri Govinda Gopinath Nadana Mohan. Jaya Radha Jaya Krishna Jaya Vrindavan. Jaya Radha Jaya Krishna Jaya Vrindavan. Shri Govinda Gopinath Nadana Mohan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Gopala Gopala Devaki Nandana Gopala. Gopala Gopala Devaki Nandana Gopala. Gopala Gopala Devaki Nandana Gopala. Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada 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 Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol. प्रणाम संकीर्तन की श्री श्री राधा गोविंद देव की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री गौनथाय की श्रील प्रभुपाद की ओम विष्णुपाद विराज आचार्य स्तोत्र शत श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर जय गुरु श्रील प्रभुपाद की ओम विष्णुपाद विराज आचार्य स्तोत्र शत श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य सुदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की मथुरा वृंदावन धाम की श्री यमुना मैया की गंगा मैया की श्री चिंताहरण महादेव की श्री गोकुल धाम की श्री वृंदावन यात्रा की जय गौर प्रेमानंदे. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gaurang Srila Prabhupada ki. Gaura. ओमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम बहुत कुछ इम्पोर्टेंट जगह पे हम लोग कहने के बैठे हुए पूर्व हैं। हम लोग यहाँ पे यहाँ पर जो गोकुल हमारे धाम साथ है वहाँ पे बैठे हैं। जो और ब्रजवासी आज प्रभु जो जी मोस्ट इम्पोर्टेंट उपस्थित है टॉपिक उनसे आज हम की निवेदन यूथ को करेंगे हम लोग यहाँ फील की। करते हैं। हरे कृष्णा। एक सेकंड। हरे कृष्णा। तो जो हम लोग आज के यूथ सब इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हम लोग का जो समय है वो किसके लिए है। बीइंग यूथ हम लोग क्या एंजॉयमेंट के लिए हमारा टाइम है या फिर हमारा टाइम जो है वो एनलाइटमेंट के लिए है ना। तो ये जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हम सभी के जीवन में फील करते हैं कि हमारा जो समय है शायद वो इंटरटेनमेंट, तो जो स्पिरिचुअलिटी है क्या वो एक बोरिंग सब्जेक्ट है और क्या वो सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए है ना। तो ये डाउट हमेशा हम सभी के दिमाग में रहता है। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर वेदांत चैतन्य प्रभु जी सेशन दे रहे हैं। तो आप लोग सभी लोग ध्यान से लास्ट तक आज के सेशन को अटेंड करिएगा एंड लास्ट में फिर आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग सभी लोग गोकुल धाम में चिंताहरण महादेव है वहां पे हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं एंड प्रभु जी यहाँ पे कथा कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अभी चिंताहरण घाट के बारे में एक डिवोटी है ब्रजवासी हैं वो बता रहे हैं एंड देन फिर वेदांत चैतन्य प्रभु अपनी कथा शुरू करेंगे। मतलब जो क्लास है आज का, यूथ इज मीन फॉर एनलाइटमेंट और एंटरटेनमेंट ओनली है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सिंसियर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप लोग सेशन अटेंड करने आए हैं। तो ठीक है, ओवर टू वेदांत चैतन्य प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, अभी वो चिंतारण धाम के बारे में, चिंतारण महादेव का जो ये मंदिर है उसके विषय में बता रहे हैं। तो अभी लगा तो भैया ये देखकर डर गई। वो बोलने लगी ये मेरे कृष्ण नहीं है, ये मेरा लाला नहीं है, इसके मुख में तो माया भी कोई घुस गया है। हमारे ब्रज में बोलते इसमें तो कोई भूत आ गया है। तो मैया डरने लगी, अपने कृष्ण को अपने लाने से भी डरने लगी और जगह जगह जहाँ संतों के पास जाने लगी, मेरे लाला को कुछ है गए हैं, जाके मुंह में कोई भूत पिशाच आ गए हैं, जाके मुख में जाने क्या क्या देख रहे हैं। तो नंद बाबा यशोदा के घर में एक चंद्रावली नाम की सखी थी। वो सखी ने यशोदा मैया को उपाय बताया कि ब्रह्मांड घाट से थोड़ी दूर पर एक बहुत बड़े तपस्वी संत हैं, वो झाड़ फूक करते हैं और तेरे लाला का जो भूत है वो दूर हो जाएगा। तो मैया यहाँ कृष्ण को लेकर आई है और यहाँ स्वयं जो वो संत है वो कौन है? महादेव। हरे बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ यशोदा मैया और साधु से बोली है, हे बाबा साधु तेरा बहुत नाम सुनो है, तू बड़ो तो शक्ति है, तो मैं मंत्र है, मेरे लाला पे कोई टोना टोटका है वो है या लाला को सही मैं तो दूं। तो शंकर भगवान बोले माँ चाहिए तेरी धन माया, तू अपने लाला को स्नान करा, स्नान करके जो जल बचे मैं वासी तेरे लाला ठीक कर दूं। तो भगवान को स्नान करा के जो जल बचो, तो मैया ने यहाँ शंकर भगवान को जो संत बैठे थे उनको यहाँ दिया है और वो जल स्वयं शंकर भगवान ने अपने डाल लिया है, यानी कि स्वयं भगवान कृष्ण का जो जल है, क्योंकि स्वयं कृष्ण महादेव की पूजा करते हैं और महादेव कृष्ण की पूजा करते हैं। तो मैया का वो समय जो ब्रह्मांड घाट पर मैया ने वो देखा, स्वयं भगवान की कृपा से वो चीज सबको भूल गई मैया। तो इस स्थान का नाम बोला चिंताहरण महादेव। इस चिंताहरण महादेव में शिवलिंग, लेकिन चारों तरफ छोटे छोटे शिवलिंग लगे हैं, उसमें 1108 यानी कि 1108 छोटे छोटे शिवलिंग हैं। पहले पुराने टाइम में काफी बड़े बड़े दिखते थे, अब थोड़ा लोग वहां अभिषेक करते हैं, हाथ को ऐसा मलते हैं, थोड़ा घिस घिस के थोड़े छोटे हो गए। लेकिन ये चिंताहरण महादेव जो है स्वयं महादेव यहाँ प्रकट हुए हैं और भगवान कृष्ण की लीला का यहाँ। और प्रभु जी हमसे ज्यादा जानते हैं, आपको बताएंगे। वृंदावन में गोपी का रूप लेकर आए हैं, दरबार पर आशेश्वर बनकर आए हैं
और यहाँ चिंताहरण महादेव के नाम से प्रकट हुए हैं। तो ये घाट का नाम चिंताहरण घाट है। बोलो चिंताहरण घाट की जय। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है यहाँ पर गोकुल धाम में। हम प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, ब्रजवासी प्रभु जी का, जो कि बहुत ही सुंदर से हमें यहाँ की महिमा सुनाई। यहाँ पर तो ये लोग तो स्वदेशी है, हम तो विदेशी है। तो जैसा प्रभु जी अपनी नम्रता के कारण कह रहे हैं कि हम ज्यादा जानते हैं, नहीं, हमसे ज्यादा तो वही लोग जानते हैं, क्योंकि असलियत में तो कृष्ण इन्हीं का है। तो हम इनसे लेने आए हैं, इन्हीं लोगों का है। तो भगवान का एक विशेष प्रेम है ब्रजवासियों के प्रति। और ब्रजवासी मतलब केवल मनुष्य ही नहीं है, यहाँ पर जितने भी जीव जंतु, चींटी से लेकर पेड़ पशु जो कुछ भी है, सभी ही ब्रजवासियों के ही अंतर्गत आते हैं। इसलिए जितना भी ब्रज में हम अगर जहां पर भी बैठे हैं वहां पर थोड़ा बहुत कुछ चींटियों को मार देने का, या नहीं तो फिर पत्ते वत्ते तोड़ने का, या घास फूस निकाल देने का। देखिए यहाँ पर इस ब्रज में एक घास बनने के लिए भी एक ऋषि मुनि को कई हजारों साल तक तपस्या करने के बाद उनकी जब भक्ति बिल्कुल पक जाता है, तब जाकर उन्हें यहाँ पर वास करने के सौभाग्य उन्हें प्राप्त होता है। घास के रूप में, एक तिनका के रूप में, चींटी के रूप में, पेड़। आप इतना आसानी से साकर उखाड़ कर फेंक दिया। तो उन्होंने इतना हजारों साल तपस्या करके जो कमाया, जो स्थान, आपने सेकेंडों में निकाल दिया। इट इज अ वेरी ऑफेंसिव बिहेवियर। बहुत ही अपराधपूर्ण व्यवहार है इस प्रकार से करना। यहाँ पर जो भी ब्रज में रहते हैं, चाहे चींटी हो चाहे मनुष्य, जो कुछ भी हो, हमें सही प्रकार के आदर प्रदान करनी चाहिए। विशेष स्थान भगवान के साथ, भगवान के संबंध में उनके विशेष स्थान को समझते हुए। क्योंकि तीनों लोकों में ये ब्रज या वृंदावन सबसे महिमान्वित धाम है। कोई ऐसा स्थान नहीं है ब्रह्मांड के अंतर्गत जो कि इस ज्यादा महिमान्वित हो। So you are right now sitting in that very sacred place, which is glorified on all the three worlds. तीनों लोकों में जिस स्थान की महिमा गाया जाता है, वैसे स्थान में अभी आप बैठे हैं। So you can imagine how fortunate you are. आप सोच भी नहीं सकते हैं कितना भाग्यवान हम सभी है इस धाम में आने। शास्त्र में यहाँ तक भी कहना है, इस व्रज के अंतर्गत सबसे महत्व तो तीन चीजें माना जाता है, जो कि भगवान के समय से लेकर अभी तक चली आ रही है। वही चीज जो भगवान के समय में थे, वही चीज आज भी हमें यथारूप में उपस्थित प्राप्त होती है। वो है एक जो कि आपके बगल से जो बह रही यमुना मैया। यमुना मैया की। तो भगवान के समय 5000 साल पहले भी इसी प्रकार से यमुना मैया इसी तट से बहा करती थी। में अभी आप बैठे हैं, ये सारा भगवान के आंगन है, भगवान के खेलने का आंगन है। जैसे कोर्टयार्ड होता है ना, अभी तो कोर्टयार्ड है ही नहीं, सारा फ्लैट है। ना कोर्टयार्ड पता चलता है, ना घर पता चलता, कुछ भी पता नहीं चलता बच्चों को। उनको ये चार दीवारी दिखाई पड़ती है बस, क्योंकि ना कोई पेड़ पता है ना कुछ पता है आजकल के बच्चों को। इसलिए अगर जब जैसा प्रोजेक्ट बता रहे हैं माटी माटी के लीला, तो उनको लगता है माटी माटी में क्या खेलते बच्चे, बट माटी में खेलने को मजा तो उन्हें क्या पता है, जो खेले उन्हें पता होगा।
लोगों को केवल वही वीडियो गेम या नहीं तो आजकल तो कई इतने इतने सारे ऑनलाइन नेटवर्क गेम्स वगैरह इतना चीजें शुरू हो गई हैं कि लोगों पीपल आर नॉट ऑल बॉदर्ड अबाउट गोइंग, आई मीन दे आर नॉट इवन अवेयर अबाउट पीपल कैन गो आउट एंड प्ले एज वेल। बाहर जाकर खेला भी जा सकता है करके भी पता नहीं, reserved and so much bound to their four walls, बस चार दीवार के अंदर गति सीमित है लोगों की विचार। ठीक है, एनीवेज, तो ऐसा वृंदावन है। ऐसा वृंदावन के विषय में कहा जाता है यहाँ की जो मिट्टी है ये यमुना मैया है एंड तीसरा गोवर्धन है। गोवर्धन यहाँ की मिट्टी और फिर यहाँ की यमुना, ये तीनों चीजें शाश्वत रूप से भगवान के समय से लेकर अभी तक भी उसी प्रकार से चली आ रही है। बाकी चीजें सारी चीजों में अलग अलग मतलब अनेक प्रकार के परिवर्तन तो दिखाई जाता है कालांतर में। तो वैसा यहाँ का मिट्टी जो है तुलना किया जाता है कि वैकुंठ जहां पर भगवान विष्णु वास करते हैं वैसा वैकुंठ भी यहाँ का व्रज के धूलि का एक कण के बराबर भी नहीं माना जाता है। यहाँ का धूलि का एक कण का भी बराबर वैकुंठ को नहीं माना जाता है, जहां पर विष्णु लक्ष्मी जी के साथ हमेशा के निवास करते हैं। सच अ ग्लोरियस लैंड इज दिस, इतना महिमान्वित भूमि है ये। क्योंकि इस भूमि का विशेषता यह है कि वैकुंठ में भी क्यों ना हो भगवान जूते पहनकर चलते हैं, बट यही एक ऐसा धाम है जहां पर भगवान खाली पैर चलते हैं, नंगे पैर। सो दिस इज द ओनली प्लेस इन यूनिवर्स वेर इन भगवान की चरण की चिन्ह हम पाया जाता है। हर भगवान की चरणों का चिन्ह पाया जा सकता है। देखने का नजरिया चाहिए। नजरिया चाहिए। बट दिस इज हाउ ग्लोरियस दिस लैंड इज। डेफिनेटली जब ये सारा कुछ सुना जाता है तब लोगों को यही लगता है कि these are all sentimental fools। ये सभी जो कोई भी इस प्रकार के सारे बातें कह रहे हैं केवल एक सेंटिमेंटल फूल है, मूर्ख है बस। बट अभी हम कुछ चर्चा करेंगे, ये सारे सेंटिमेंट नहीं है। वी आर फूल्स हु डू नॉट बिलीव इन देम। वो मूर्ख है जो कि इन चीजों में विश्वास नहीं रखता है। साथ ही साथ आध्यात्मिकता को लेकर अनेक प्रकार की भ्रांत धारणाएं आज के समाज में जो प्रचलित है, तो उन भ्रांत धारणाओं के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। खास करके युवाओं के अंतर्गत प्रकार के प्रश्न हमेशा युवाओं से पूछा जाता है। अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिकता में किसी प्रकार का जुखाम दिखा रहे हो, देन तुरंत उनकी परिवार से हो, उनकी कॉलेज से हो या अलग अलग प्रकार की जगह से उनको इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है। व्हाट आर यू डूइंग इन योर यूथ? आप अपना इतना यौवन की स्थिति में हो, तो ऐसा युवक अवस्था में इस प्रकार की आध्यात्मिकता को लेने की क्या जरूरत है? आध्यात्म में तो बुढ़ापा में करनी चाहिए, तभी क्या कर रहे हैं? ये माला झोली वृंदावन, माटी माटी गोपाल, चिंताहरण महादेव, सारा तो बाद में देखा जाएगी, बूढ़े बनने के बाद। तभी क्या कर रहे तुम लोग? प्रश्न आता है या नहीं? वेरी कॉमन क्वेश्चन है।
उनको गंदा पानी था, नहीं थी। तो फिर हमने सोचा कि अगर ऐसा पानी में मैं खुद जाकर नहाऊं, दिन फिर मैं 2 दिन में बीमार पड़ जाऊंगा, है या नहीं? तुरंत बीमार पड़ जाऊंगा। बट वेराज ये पिग, ये सुअर, ये बीमार पड़ेगी? अरे इनको तो यही स्थान, निवास स्थान है। हमारे लिए एसी रूम है, उनके लिए तो ना ही तो एसी है। तो वैसे स्थान में देन हमने सोचा कि the pig is made to live there, मतलब उनकी शरीर ही इस प्रकार से बनाई गई है जिसके लिए लाइक है। वैसा गंदा नाला में रहेगा भी और वैसा गंदा चीज खाने पर भी उनको कुछ नहीं होने, बिकॉज उनकी शरीर ही इस प्रकार से बना। दैट्स व्हाई वो बीमार नहीं पड़ते हैं, फिर उनको इस प्रकार की प्रभाव नहीं पड़ता है। बट हमारे केस में अगर जिस प्रकार की गंदा चीज एक सुअर खाती है और वही चीज हम खाएंगे तो, जिस प्रकार की गंदा प्रदेश में वो रहती है अगर उसी स्थान पर हम रहेंगे तो बीमार पड़ेंगे ना। वाई बिकॉज वी आर नॉट मेड फॉर इट, क्योंकि वी आर नॉट, हमारे शरीर उस प्रकार से नहीं बनाई गई है। वी आर नॉट मेंट फॉर इट। तो ये बात समझना चाहिए। देन व्हाट इज इट दैट वी आर एक्चुअली मेंट टू डू? क्या, किस चीज के लिए हमें बनाए गए हैं, क्यों हम यहाँ पर आए हैं, व्हाट इज ऑल दिस हैपनिंग अराउंड? तो यही समझना चाहिए। वैसे हम बहुत डिटेल में तो इस अंश में नहीं बताएंगे, बिकॉज आज हम प्राइमरली हम ये विषय चर्चा करेंगे कि वाई स्पिरिचुअलिटी, जो मतलब यौवन की स्थिति में हम तो क्यों अपनाएं, तो इसके विषय में चर्चा करेंगे। बट बिफोर दिस हम आध्यात्मिकता को अपनाएं भी किस लिए, इसके विषय में चर्चा करेंगे। देखिए आज के समय पे चाहे युवक हो, बड़े हो, छोटे हो, कोई भी क्यों ना हो, एवरीबडी इज ऑलमोस्ट एवरीवन, सभी के सभी लोग एक हमसे हमारे टीचर पूछा करती थी, बेटा तुम्हें क्या बनना है, लक्ष्य क्या है जीवन का? तो कई लोग हाथ उठाते थे, फिर कहते थे टीचर हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, एंड कोई कहते थे कि टीचर हमें आईएएस ऑफिसर बनना है, कोई कहते हमें डॉक्टर बनना है। तो जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर के समाधान दिया, मतलब हमने नहीं, कोई और, एंड कोई कहते हमारी बस यही लक्ष्य है आईआईटी में जाना है, कोई कहता है आईएम में जाना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जाना है, कोई कहते हैं हमें एमआईटी में जाना है, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड में जाना है। तो जब हम आईआईटी में गए थे, हम सोचे थे कि जो लक्ष्य हमने सोचा था जीवन के लक्ष्य है करके, वो तो हासिल हो ही गया, तो अभी क्या करें? तो आईआईटी तो चली गया, तो व्हाट नेक्स्ट? क्या जीवन समाप्त है? अगर आईएएस बनना है तो आईएएस बन गया, तो फिर जीवन दैट इज ऑल। माय डियर फ्रेंड्स, बात यह है कि दिस लाइफ इज नॉट सिंपली मेंट फॉर, ये जीवन केवल और केवल इस प्रकार की नश्वर चीजों को हासिल करने के लिए नहीं दी गई है। It is not worth spending this valuable human life simply for this invaluable things in life. जब तक आईआईटी में नहीं जाएंगे तब तक दिखाई पड़ती है।
जब तक व्यक्ति IIM में नहीं जाता है तो उनके एक सपने की तरह दिखाई पड़ता है। जब तक MIT में नहीं जाता है तब तक उन्हें एक सपने की तरह दिखाई पड़ता है। बाहर जाने के बाद पता चलता है कि दिस इज नॉट वर्थ द एफर्ट। जितना प्रयास मेहनत करके मैं इस स्थान को पाने के लिए मैंने मेहनत किया, उस मेहनत की वर्ती नहीं है ये चीज। हम परसों 2 दिन पहले हम वृंदावन में ही हमारी एक गुरुकुल है, 3-4 दिन पहले गए थे। एक व्यक्ति से मिले थे, वो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जानते हैं ना? कौन कौन जानते हैं? हार्वर्ड इट्स कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स बेस्ट यूनिवर्सिटी, MIT और हार्वर्ड। तो वहां पर वो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में प्रोफेसर है, एंड वो वृंदावन में आए हुए हैं, वो और उनकी पत्नी दोनों, वो दोनों रिसर्च कर रहे थे। बेसिकली दे आर इनटू एक्सप्लोरिंग किस प्रकार से हमारे आयुर्वेद कैन क्यूर the world that cannot be cured by the medicine prescribed within the culture of Vedic culture. So मतलब वैदिक संस्कृति के अंतर्गत रिकमेंड की जाने वाली जो मेडिसिन है, वो मेडिसिन क्योर नहीं करने वाले कोई बीमार आज तक इस ब्रह्मांड में आए ही नहीं। तो 6 सालों से वो लोग रिसर्च कर रहे हैं, 6 महीने वो हार्वर्ड में स्पेंड करते, 6 महीने आपस में करते हैं। वो बता रहे थे, वो लोग अभी करंटली गंगा जल है ना, गंगा जल जैसे यमुना जल है, गंगा जल पे रिसर्च कर रहे हैं, यूरिन पे काऊ डंग पे रिसर्च कर रहे हैं। द्वारा वो लोग प्रूव करने वाले हैं कि गंगा जल की पान करने मात्र से प्रकार की बीमारी खत्म हो जाएगी, केवल पीने मात्र से। श्रील प्रभुपाद जी जानते आप सभी? कौन कौन? श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य है, जो कि 70 साल की उम्र में जब सभी ही लोग अपने बिस्तर छोड़ने के लिए भी डरते हैं, अगर बिस्तर छोड़कर कहीं जाऊं तो फिर गिर जाऊं तो फिर कौन पकड़ेगा,
तो बेहतर है बिस्तर पे लेटे रहो। जब एक रोड क्रॉस करने के लिए पोते की जरूरत पड़ता है, पोते तुम चलोगे तो मैं चलूंगा, तुम नहीं चलोगे तो मैं नहीं चलूंगा। ऐसी स्थिति में किलोमीटर की समुद्र को पार करके कार्गो शिप में अमेरिका जा, किसी भी व्यक्ति की सहायता के बिना, और हाथ में करोड़ों रुपए है क्या? 40 रुपए। 40 रुपए लेकर कार्गो शिप में अमेरिका जाते हैं। किस लिए गए हैं? बिजनेस शुरुआत करने नहीं। वहां पर भारतीय संस्कृति जो कि आध्यात्मिकता है, कृष्ण भक्ति है, उसके प्रचार करने गए थे। उसके प्रचार करने गए थे। जब श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, जब अमेरिका इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी अपने संस्कृत को लेकर गए, देन सभी लोग सोचने लगे कि पहले भी कई स्वामी जी लोग तो आए थे, बट सभी हमारा संस्कृति सीख कर गए। यहाँ आते हैं कोट पैंट पहनकर निकलते हैं यहाँ से, ऑफकोर्स पैसा वैसे लेके, तो वहां जाकर काफी इकट्ठा करते हैं ना। जब प्रभुपाद गए थे, हमारे भारत क्या छवि थी वहां पर उस समय 1960s में? आवर कंट्री इज नोन टू बी अ बेगर्स कंट्री, भीख मांगने वाली देश के रूप में विख्यात हमारा देश। बिकॉज ऐसा नहीं कि हमारे भारत के अंदर का तो कई भीख मांगने वाला है, उसकी वजह से नहीं। हमारा राजनेताएं भी जब भी किसी प्रकार के विदेश में जाया करते थे, वहां भी जाकर भीख ही मांगते थे। थोड़ा पैसा दे दो, हमें दिक्कत हो रहे हैं, हमारी गरीबी को हटाना है, तो टेक्नोलॉजी का भीख दीजिए, धन की भीख दो। तो उसी प्रकार से भीख मांग मांग कर जाए। तो इसलिए अगर कोई भारत से आया मतलब भीख मांगने के लिए आए करके लोगों की मान्यता हो इस समय। इसलिए वो लोग भी सोचने लगे कि श्रील प्रभुपाद जी जो भी आए यहाँ पर, वो भी भीख ही मांगने आए। देन प्रभुपाद जी कहते हैं, जब लंदन में पहली बार गए, लंदन में भी श्रील प्रभुपाद जी से रिपोर्टर ने पूछा, स्वामी जी आप यहाँ क्यों आए? स्वामी जी ने कहा, देखो अब डरो मत, हम आपसे कुछ लेने तो नहीं आए। आप लोग जब हमारे देश में थे 200 साल तक, जो जो चीजें आप लोगों ने कीमती माना, उन सारे चीजों को उठा लेंगे। कोहिनूर डायमंड से लेकर, पीकॉक स्टोन से लेकर, कॉटन से लेकर, हर चीज आपने एक्सपोर्ट कर डाला, एंड फिर सारा भारत खाली कर दिया। बट भारत देश की जो असली संपत्ति है, उस संपत्ति को आपने पहचाना ही नहीं, इसलिए आप ले आया नहीं। तो आज का दिन हम वही संपत्ति जो कि भारत देश की असली संपत्ति है, उस संपत्ति को आपके घर पे डोर डिलीवरी देने आए हैं। हम आपको डोर डिलीवरी का सदुपाय दे रहे हैं। डोर डिलीवरी देने आए हैं भारत देश की असली संपत्ति। वो संपत्ति क्या है? And that is what is the culture of India. भारतीय संस्कृति। और भारतीय संस्कृति मतलब केवल वेशभूषा में ही नहीं, केवल भाषा में नहीं। भारतीय संस्कृति मतलब वो संस्कृति है जो कि भगवान को केंद्र में रखते हुए हर प्रकार के कार्य किया जाता है। The entire civilization is actually centered around God. भगवान को केंद्र में रखते हुए जिया करते थे लोग।
इसलिए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एंड इसी को आध्यात्मिकता कहा जाता है। जो भी जीवन भगवान को केंद्र में रखते हुए जिया जाता है, दैट लाइफ इटसेल्फ इज कॉल्ड स्पिरिचुअल लाइफ। बिकॉज आज के समय पे स्पिरिचुअलिटी का कई प्रकार की व्हाट इज इट अफवाह, मिसकंसेप्शन, अफवाह कहेंगे ना, अफवाहें चलती है। कई लोग आध्यात्मिकता मतलब यही मानते हैं कि ऊपर नीचे सांस छोड़ना, प्राणायाम करना हो, या नहीं तो अलग अलग प्रकार के आसन करना, ऊपर नीचे टांग जाना, पैर को ऊपर रखना, सिर को नीचे रखना, या अलग अलग प्रकार का आसन करना, या कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना, कुछ ध्यान लगाना। पूछा जाए बेटा आप ध्यान तो कर रहे, किसकी ध्यान कर रहे हो? अरे ये तो पूछो मत, हमें ही पता नहीं किसकी ध्यान कर रहे, बस कर रहे हैं हमारे फेवरेट हीरो पे ध्यान कर रहे हैं। हमारा फेवरेट हीरोइन पे, हीरो पे, पॉलिटिशियन पे, सचिन तेंदुलकर पे ध्यान लगा रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं? सचिन तेंदुलकर सिक्सर मार के दिखा सकते हैं। Because this is the kind of meditation people have throughout the day. देखिए, जिस प्रकार के जीवन आप दिन भर जीते हो, सडनली आंख बंद कर दें क्या दिखाई पड़े? जो आपने दिन भर किया है ना, how can the whole picture change just by closing your eyes? दिन भर धोखाबाजी का जीवन जीते हैं, एंड फिर सडनली शाम को या सुबह सुबह आप आंख बंद कर देने से कुछ और दिखाई पड़े। वही चीजें जो आपने दिन भर आपको मूर्ख बना रहे बस। मूर्ख ही बना रहे और कुछ नहीं। जैसे उदाहरण के लिए आप सोते भी है, किस प्रकार के सपना आता है? जो आपने whatever was occupying your mind, that is going to come in your dream that way, right or not? जो कुछ भी आपको दिन भर आपने किया, जो कुछ भी आपका मन को बिल्कुल ऑक्यूपाई कर रखा है, मान लीजिए किसी का झगड़ा हुआ, तो वो दिखेगा ही नहीं सपने में, उनके दर्शन हो जाएंगे। तो लगता है अरे सपने में छोड़ा नहीं इन्होंने। तो वही तो ध्यान में भी तो होने वाली। And that is why spiritual is not about 5-minute meditation or 10-minute meditation. 10 मिनट के ध्यान नहीं है, 5 मिनट के ध्यान नहीं है, अलग अलग प्रकार के आसन नहीं है। आध्यात्मिकता का मुख्य लक्ष्य अपने हृदय की परिवर्तन, अपने हृदय की परिवर्तन है आध्यात्मिकता का मुख्य लक्ष्य। अपने हृदय की परिवर्तन किए बिना बाकी जितना जो कुछ भी साधन आप अपना भी लीजिए, नो यूज। इस रास्ते में कहा जाता है श्रम एव ही केवलम, इट इज सिंपली अ वेस्ट ऑफ हार्ड वर्क। जहां पर आप असलियत में आध्यात्मिकता का मुख्य उद्देश्य हमने समझाया। तो आध्यात्मिकता क्या मुख्य उद्देश्य है? अपने हृदय की परिवर्तन करना। And how does this take place? कैसे होगा ये? क्या कोई बाईपास सर्जरी करते हैं या हार्ट ट्रांसप्लांट कर देते हैं? आपकी हृदय को निकाल कर दूसरा हार्ट दे, सारा गंदगी है।
या कोई दवाई है, सारा गंदगी को निकाल देंगे। देखिए पेट में गंदगी है तो आप डायरिया की दवाई लेकर, लूज मोशन की दवाई लेकर निकाल देंगे सारा गंदगी। बट गंदगी जो सटल लेवल पर है, विच इज ऑन अ वेरी सूक्ष्म स्तर पे है, उस गंदगी को निकालने का तरीका ना कोई दवाई में है ना कोई ऑपरेशन। उसकी दवाई केवल और केवल आध्यात्मिकता है। जस्ट एज जैसा किसी भी वस्तु को आप आग के संपर्क में लाएंगे तो क्या होगा? आग के संपर्क में लाने से वो जो वस्तु है वो भी इट विल आल्सो इनहिबिट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फायर। आग का ही गुणों को वो अपने अंदर ले आती है, तो वो भी आग का भाग बन जाती है। उसी प्रकार से आध्यात्मिकता में या हृदय परिवर्तन के संबंध में समाधान यही है, द मोमेंट जब हम अपने आप को भगवान के संपर्क में लाते हैं, जो कि भगवान पूर्ण रूप से शुद्ध है। उसके विषय में, भगवान के विषय में भगवद गीता में कहा जाता है, पवित्रम इदम उत्तमम, इज द सुप्रीम मोस्ट प्योर पर्सन। तो वैसा शुद्ध व्यक्ति के संपर्क में जब हम अपने आप को लाते हैं तो उन्हीं की ही तरह हम भी आग बन जाए, उन्हीं की तरह पवित्र बन जाए। तो आध्यात्मिकता मतलब इट इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग वनसेल्फ इन प्रॉक्सिमिटी और इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान के साथ अपने आप का एक बहुत नजदीक संबंध बनाना, इसी को आध्यात्मिकता कहा जाता है। इस प्रकार का आध्यात्मिकता, एंड ये आध्यात्मिकता कोई आसन से नहीं संभव है, न कोई इत्यादि चीजों से संभव है, जो हमारे वैदिक संप्रदाय से बहुत पहले से जो चली आ रही है, जिसको हम एक सेंटिमेंट के तौर पर, सेंटिमेंट के नाम से हमने नकार दिया है। हम अपने दादी माँ को, सभी लोगों का मजाक उड़ाते हैं जब कोई पूजा पाठ करते हैं। जैसा आप इस प्रकार के सेशन में आएंगे तो slowly and gradually realize the scientific nature of this thing. देखिए, अगर इन चीजों की आध्यात्मिकता में किसी प्रकार के बेसिस नहीं होता है, देन में कोई मूर्ख होगी यहाँ पर बैठकर ये सारा करने के लिए। जो चीजें आप पढ़ रहे हो वो सारा कुछ मैंने भी तो पढ़ा है, और जहाँ आप जाना चाहते हो वो सारा जगह तो हम घूम कर ही तो आए हैं यहाँ पर, सारा जगह तो घूम कर ही आए हैं। एंड ये जो MIT का जो प्रोफेसर, ये हार्वर्ड के प्रोफेसर जिनके विषय में हम बता रहे हैं, क्या ये कोई मूर्ख है? यहाँ पर हार्वर्ड मतलब 6 महीने वहां पर रह के 6 महीने यहाँ रह के फिर इतना रिसर्च करके फिर आध्यात्मिकता को और फैलाने का प्रयास करने में, he's a foolish person, do you think? क्या ऐसा मूर्खों को यहाँ हार्वर्ड में रखा जाता है? मेडिकल स्कूल में, आओ मूर्ख इधर आओ, मैं आपको रिसर्च करता हूँ। This is really a very scientific process. The only thing is that it's the scientific backing. We need a person who can help us understand what scientific basis does it have. इसकी साइंटिफिक बेसिस क्या है, इसको समझने के लिए एक व्यक्ति को मदद की जरूरत है। हमारा because it is a very wrong conception है आज के समाज में, कि लोग साइंस के आधार पे, साइंस के नाम लेकर भगवान को नकार देते हैं। बहुत कॉमनली देखा जाता है, साइंस के नाम लेकर भगवान को नकार दिया जाता है। बट आप समझिए, जिन लोगों ने साइंस का आविष्कार किया है, न्यूटन से लेकर, आइंस्टीन से लेकर, मैक्स प्लैंक से लेकर, फैराडे से लेकर, ओपनहेम से लेकर, हाइजेनबर्ग से लेकर, जितने साइंटिस्ट के नाम मैंने गिना, ये सभी के सभी आस्तिक है, जो कि भगवान की उपस्थिति को मानते हैं। बट आज तो लोग
एक मजाक के तौर पर लेते हैं। अगर कोई कॉलेज की लड़का या लड़की अगर मंदिर होकर जाते हैं वापस हॉस्टल में, अगर कहा जाए तो कहाँ जाकर आए, वृंदावन। फिर वृंदावन जाते तुम, तो एक प्रकार की मजाक बन जाता है। Because it is mere foolishness. तो वैसा आध्यात्मिकता को ऐसा युवक की स्थिति में क्यों अपनाना चाहिए? आप में से सभी लोग तो इसी प्रकार के युवक में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, व्हाट इज ओल्ड एज? बुढ़ापा है क्या? डिफाइन कैसे कर सकते, कौन बताए? बुढ़ापा है क्या? हाँ, एजिंग ऑफ द बॉडी, डिटेरियोरेशन ऑफ द बॉडी। वो तो अभी भी हो ही रहे हैं ना डिटेन। तो मतलब आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ डिटरमिनेशन आप कहेंगे कि ये ओल्ड एज है। ओके, और कौन बताएंगे? अरे ज्ञान से परिचित हो, इसको मतलब ज्ञानी लोग भी बूढ़ा बनेंगे, बाकी सब लोग बूढ़ा नहीं। बॉडी डिटेरियोरेशन विषय में कहा जा रहा है, कई बार कई लोग तो 10-15 साल में ही उनकी शरीर जवाब दे देती है, फिर उनका सारा अंग वंग सारा खराब हो जाती है, उनके व्यक्ति मर भी जाता है। तो हाउ डू वी डिफाइन दैट? जब एनर्जी लिमिटेड हो जाती है। आजकल कई युवक यही कहते हैं, एक दिन की वृंदावन यात्रा के बाद में कहते हैं कि सारा एनर्जी निकल गया, तो so tired that I mean, तो जाकर हमें उस तक गिर जाना है, बस लेटना एक दिन की यात्रा। Then लाइफ एंडलेस हो, इसको मतलब हम सभी बूढ़ा है, बूढ़े। हाँ, well, that is very good, very good. Okay, काफी सुन। अंग्रेजी में आपकी उम्र को कैसे पूछा जाता है? How old are you? How old are you पूछता है ना। 1 साल की बालक है, उनसे भी क्या पूछा जाता है? How old are you? 5 दिन की, the same question remains the same. How old are you? इसका मतलब यही है, the moment we take birth, we are not a newborn baby, rather we have grown old. एक बार जन्म लेने के बाद एक दिन में बीत जाता है। How old is this baby? 1 day old. कितना बूढ़ा है? एक दिन का बूढ़ा। तो बूढ़ा तो तभी से बन रहे हैं लोग। तो अगर बुढ़ापा का ये समझ है, देन हम किस चीज के लिए वेट कर रहे हैं? तो लोग कहते हैं ना, आध्यात्मिकता को बुढ़ापा में अभ्यास करो। लोगों की समझ यही कि बुढ़ापा का मतलब है बाल सफेद हो जाएगी और दांत निकल जाएगी
और 2 पैर के साथ तीसरा पैर आएगी हाथ में। फिर व्यक्ति सीधा बैठ नहीं सकता है। चल नहीं पाता है, बोलने पे मतलब आवाज क्लियर नहीं होता है, बिकॉज कफ है अंदर, खांसता रहता है। जब कुछ बोल नहीं पाता है, जब कुछ सुनाई नहीं पड़ती है, जब चल नहीं पाता है, जब कुछ दिखता नहीं है सही से, जब कुछ याद में नहीं रहता है, तब कौन सा भक्ति कर लोगे? What kind of spirituality will you be observing, will you be practicing at that age? वैसे उम्र में किस प्रकार के आध्यात्मिक आप प्रैक्टिस करोगे? समझ में आ रही बात? जब भी आप किसी भी प्रकार का चीज भगवान का अर्पण करने जाते हो, किस प्रकार की चीज अर्पण करने जाते हो? सड़ा हुआ माल, जैसे गुलाब है, बिल्कुल सड़ जाने के बाद, सूख जाने के बाद सारा पत्ते वत्ते सारा गिर गया, क्या बचा है? केवल वो बड बची है, तो उसका आप भगवान, ये मेरी प्रेम की तोहफा है, आई लव यू भगवान, प्लीज एक्सेप्ट दिस। बहुत अच्छा है ना प्रेम। When are you supposed to wake up? देना चाहिए। When it is very very fresh। इस बात में अभी भी लोग जवाब दे देते हैं, तो एक दिन की यात्रा के बाद फिर लटका देते हैं इसे, बेटा अभी आज शाम को जाके बस देखिएगा, सभी के चेहरा लटक जाएगी। तो वैसे स्थिति में बुढ़ापे में आएंगे तो फिर क्या करोगे? देखिए क्या चलोगे? कई बार हम कभी गलियों में से बस निकालने के लिए मुश्किल पड़ता है, हम कहते हैं कि ठीक है बस हम यही रोकते थे, वहां तक हम चलते हैं। लोग पूछे कितना दूर चलना है? वो ज्यादा दूर तो नहीं, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर तो जी हम कभी चले ही नहीं। This is the kind of use we have, because that is the kind of उसी प्रकार की intake है, very unnatural intake है, इससे बहुत ही unhealthy body है, समय तो लोगों का ना बहुत ही कमजोर शरीर, इसलिए आज समय पे एक ऐसा बीमारी भी है, एजिंग स्टार्ट वेरी वेरी अर्ली। व्यक्ति केवल 10-12 साल में ही उनकी एज इतना जल्दी बढ़ने लगती है, वो 80 साल की व्यक्ति की तरह बन जाती है। उनकी सारा चमड़े भी रिंकल्स आ जाती है, तो बाल सफेद हो जाता है, बाल निकल जाता है, दांत टूट जाएगी, फिर व्यक्ति 12 साल में मर भी जाता है। इसलिए old age has, to wait for old age to come, it has no meaning at all। इस प्रकार से लोग कई बार कहते हैं बुढ़ापा में जाकर भक्ति करो, आध्यात्मिक भागवतम की कहना है कि कौमार मातरे प्राग्दो धर्मान भागवतानि। भागवत धर्म की आचरण या आध्यात्मिकता की आचरण कब शुरुआत करनी है? कौमार माचरे, कौमार की अवस्था में हमें अभ्यास करना शुरू करना चाहिए। कौमार अवस्था मतलब कब है? 5 साल की उम्र। 5 साल की उम्र से व्यक्ति को जब से एलकेजी में ABCD सीखने लगते हैं, तब से ही उन्हें आध्यात्मिकता को अभ्यास करना शुरू करनी चाहिए। हम कितने साल लेट है बताइए? कितने साल लेट? 25 साल की कितने? 20 साल,
तभी जाकर आप एलकेजी में बैठ जाओ, कैसे लगेगा? अभी जाकर एलकेजी में जाकर बैठेंगे तो बहुत अजीब तो लगेगा ना। आध्यात्मिकता की एलकेजी में बैठे हैं, अभी तक कहाँ पहुंच जाना चाहिए थी। ये सपोज टू फिनिश और ग्रेजुएशन इन स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी चाहिए थी, बट अभी भी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट ये पढ़ रहे हैं। ए फॉर कृष्णा, बी फॉर बलराम, आर फॉर राधा रानी, बी फॉर वृंदावन, जी फॉर गोकुल, and C for Chintahan Mahadev. So this is what we are doing now. बहुत पहले करनी चाहिए। We are already very late. तो अभी जब हम already late हैं, तो why not finish each of the classes? जैसा अगर आप late ज्वाइन किए हैं LKG में, कोई बात नहीं, कम से कम better late करने पर। बाकी सभी लोग तो कभी आए ही नहीं, तो फिर वो लोग तो वैसे ही घूम रहे हैं। तो वैसे परिस्थिति में व्हाई नॉट हम अपने प्रोग्रेस को हम स्पीड अप ना करें, स्पीड अप कर सकते हैं ना। सो इट इज इन योर हैंड्स, आप प्रयास करें स्पीड अप कर सकते हैं, तो स्पीड अप करिए। हम आपको हर प्रकार की फैसिलिटी देने के लिए तैयार है। Simply like to speed up your process. Speed up करना। And उसी कई लोग कहते हैं बुढ़ापा में करने के लिए। एक और प्रश्न है कि बूढ़े बनने तक रहेंगे क्या? इसका कोई गारंटी है? कितने लोगों के पास अपनी अपनी गारंटी कार्ड दिखाइए। वारंटी कार्ड होता है ना, 5 years वारंटी, 10 years वारंटी। किसी के पास अगर 70 साल की वारंटी है तो किसी को दिखा दीजिए, मैं कह सकता हूँ ठीक है आप 70 50 में आप शुरू करेंगे। कोई गारंटी नहीं है ना। द लाइफ कैन कम टू एंड एट एनी मोमेंट। कोई भी क्षण हमारा जीवन खत्म हो सकती है, कोई भी क्षण। जब कोई भी क्षण हमारा जीवन खत्म हो सकती है, that means our life can come to end the very next moment. 1 महीने में, 1 साल में, 10 साल में खत्म हो सकती है। अगर आप 10 साल तक आप आध्यात्मिकता के अभ्यास नहीं किया है, इसी प्रकार से एक बार लंदन में ही, शायद लंदन में पता नहीं कहीं पर, श्रील प्रभुपाद जी से एक रिपोर्टर ने पूछा, प्रभुपाद आप इतना हल्ला कर रहे हो कृष्ण कृष्ण करके, अगर आप मरते वक्त आपको ये बात आपको पता चली कि कृष्ण करके कोई है ही नहीं, सारा गोलमाल है, किसने आपको गुमराह कर दिया, अगर ये बात अगर जीवन मरते को पता चला तो जिन प्रभुपाद जी ने उनसे प्रश्न पूछा, देखिए तब भी कोई नुकसान नहीं है ना। नुकसान क्या? बिकॉज हम खूब खा रहे हैं, पी रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, जिसके लिए लोग पैसा दे देकर बॉलरूम्स में जाते हैं, डिस्को में जाते हैं। कितना टिकट होता है? 5,000 10,000 का टिकट होता है। आप लोगों ने कितना दिया? कितना पे दिया आप लोग? 600 रुपए ना। 600 रुपए पूरा डिस्को हो गया, कीर्तन भी हो या म्यूजिक हो या फिर नाचते रहे। And this is what people pay for. And वहां पर ना सुनने वालों को पता होता है कि वो गा क्या रहे हैं, ना गाने वालों को पता होता है।
इतना इतना 24 डेसिबल म्यूजिक होता है कि कान पड़ ही जाता है। सच एन अननेचुरल सेटिंग। कितने नेचुरल सेटअप है यमुना के बगल में पेड़ के नीचे वृंदावन में। सच नाइस। तो इस प्रकार से इनको इस प्रकार से हम तो खूब एंजॉय कर रहे हैं। वी आर एंजॉयिंग अ लाइफ मच मोर देन व्हाट यू डू। जितना आप एंजॉय करते हो उससे ज्यादा ही मैं एंजॉय कर रहा हूँ। आप तो कभी हफ्ते में या 10 दिन में कभी कभी आप जाते हो कोई चीज मतलब कोई रेस्टोरेंट वगैरह, हम तो रोज ही जाते हैं। बट थिंक अबाउट योरसेल्फ। एक बार आप अपने बारे में सोचो, अगर जीवन भर आप आध्यात्मिकता को और कृष्ण को अपनाए बिना सारा जीवन जी लिया और जीवन की आखिर में आपको पता चले कृष्ण है तो तुम्हारी आंखें तो समझ में बात। So that's why there is no loss at all. आध्यात्मिकता को अपना कर there is no loss. Rather it's always beneficial. And एक और कारण है कि आपने कभी बांस को देखा? बांस की लकड़ी बिल्कुल सूख जाने के बाद बांस की लकड़ी को आप बेंड करने का प्रयास करेंगे, क्या होगा? तो अगर बांस की लकड़ी को आपको बेंड करना है तो कब करनी? बिल्कुल कच्चा, उसी समय आपको बेंड करना होगा। अगर सूख जाएगी तो फिर आप बेंड करने के प्रयास में छूट जाएगी। उसी प्रकार से जैसा लोग यहाँ पर समय बिताते रहते हैं, people get dried up and fixed up in their opinions. अपने ओपिनियंस में इतने फिक्स अप हो जाते हैं कि उनके ओपिनियंस को हिलाना चेंज करना बहुत मुश्किल पड़ता है, बहुत ही मुश्किल पड़ता है। इसलिए ये जो कौमार की अवस्था है, this is the best age when we can actually mold a person's character. एक व्यक्ति के चरित्र को एक सही प्रकार से बदलने का समय है। जितना यंग एज में वो भक्ति को पकड़ेगा उतना जल्दी उतना अच्छा। So ऑलरेडी हमारा बांस आधा सूख गया, अपनी बांस आधा सूखा हुआ है। अभी थोड़ा मोल्ड करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी ठीक है। अगर थोड़ी देर और धूप में रख देंगे तो फिर क्या होगी? टूट जाएगी। भक्ति तो लोग कहते हैं, तो बुढ़ापा में कई बार लोग कहते हैं कि प्रभु जी ये 500 रुपए रख लेना, मेरे भी आप ही कर लेना मांगा। अच्छा, गोवर्धन परिक्रमा ठीक है, रिक्शा कहाँ पर है? जैसे हम लोग कल रात को गोवर्धन परिक्रमा किए थे, कितना 22 किलोमीटर, 22 से 26 किलोमीटर है। कल रात को 6 बजे से 11 बजे 5 घंटे में। तो अभी फिर आप लोगों के साथ अभी यहाँ पर वही बूढ़ा व्यक्ति तो तेल मालिश कराने, पहले तो चल ही नहीं पाएगा। So what is it that you expect to do in your old age? कर क्या सकते हैं? तो इसलिए the best thing is to have, I mean it's already late actually speaking, it's already late. अभी भी क्यों ना हम आध्यात्मिकता को गंभीरता से लेकर इसे प्रैक्टिस करें। अगर आप अभी के समय में अपने हृदय परिवर्तन की काम नहीं करोगे
all the atrocities that we come across in the society, जो कुछ भी गलतियां और जो कुछ भी तकलीफ आज के समय पे समाज के अंतर्गत हम सामना करते हैं, उन सारे तकलीफों का एकमात्र यही कारण है अपनी हृदय की प्रदूषण। हमारा हृदय दूषित है, इसलिए हमें इतना तकलीफ झेलना पड़ता है। इन लोगों के जीवन में जब तकलीफ इतना ज्यादा बढ़ जाती है, दिन व्यक्ति के पास कोई और समाधान जब होता नहीं है, दिन व्यक्ति रस्सी टांग कर लड़ जाता है। उनके पास नो सोल्यूशन, उनके पास कोई समाधान नहीं अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए। उनको लगा कि अगर मैं मर जाऊंगा फिर समस्या खत्म हो जाएगी करके, बट वो नंबर 1 मूर्ख है। इस प्रकार से अपने जीवन को आत्महत्या के माध्यम से खत्म करने वाला नंबर 1 मूर्ख है, क्योंकि इस प्रकार से सबसे पहला आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है, जिसके फल स्वरूप उनको काफी कुछ रिएक्शन मिलने वाले हैं। ऑलरेडी उनके जीवन में जितना रिएक्शन है, वो रिएक्शन के साथ साथ आत्महत्या करने की वजह से जो भी रिएक्शन वो भी ऐड होगा। तो ये सारा कुछ उनको अगले जीवन में भोगना होगा। उनको लग रहा है कि अब खत्म कर दूंगा तो फिर खत्म नहीं होने वाली है, बिकॉज जीवन अगला भी है। Many people don't believe in this afterlife conception. जीवन के परे भी कुछ है करके लोग स्वीकार ही नहीं करते आफ्टर लाइफ कुछ है करके, because people do not believe in the concept of soul. आत्मा के अस्तित्व के विषय में भी मानते नहीं। देखिए, विज्ञान के अंतर्गत भी आप आज भी जाकर गूगल में ढूंढिए, अनेक साइंटिस्ट लोगों ने स्वीकार किया है आत्मा के अस्तित्व के विषय में। आत्मा के अस्तित्व के विषय में आफ्टर लाइफ होता है, इस जीवन के बाद भी जीवन है करके कई वैज्ञानिकों ने स्वीकारा है। बीच में थोड़ी देर के लिए स्वीकार करना इसलिए वो डार्विन की वजह से, जिन्होंने कहा सारे एवोल्यूशन प्रोसेस की वजह से होता है, तो बाद में तो पता चल ही गया। आज आप डार्विन थ्योरी के विषय में आप गूगल में सर्च करेंगे पता चल जाएगा कि हाउ फॉल्स इट इज। केवल एक प्रकार की एक फॉल्सिटी है, वो सब कुछ क्रिएट की गई है। तो जब आफ्टर लाइफ है, अगले जीवन है, अगर आप इस जीवन में सही प्रकार तैयार नहीं करेंगे तो अगले जीवन में बनेंगे सुअर, कुत्ता, बिल्ली। तो इसलिए बेहतर याद है कि मतलब to prepare oneself। इन सारे चीजों को आप सभी लोग समझिए, एंड इस प्रकार की यौवन की स्थिति में ही हम आध्यात्मिकता अपनानी चाहिए। एंड व्हाट इट एक्चुअली मीन्स टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी, आप समझिए, टू कनेक्ट वनसेल्फ विद गॉड, भगवान के साथ अपने संबंध जोड़ना, यही आध्यात्मिकता है। और भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ना कैसे है, यही सारे तरीका हम यहाँ पर समझा रहे हैं। तो इसलिए आप सभी लोग इन बातों को समझिए और फिर आप आगे बढ़िए। तो फिर यहाँ पर हम अपने सेशन समाप्त करेंगे। किसी कोई प्रश्न है इन सारे बातों को लेकर आप पूछ सकते हैं। Any questions? भारत देश ऐसा है जहाँ वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चर्च है, और जो आपने देखिए कोई भी आता है इंडिया उसके लिए हमेशा वेलकम है। इसके चक्कर में बहुत सारे टेररिस्ट किया जाते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ जो 5 साल के बच्चे वाली बात है, मेरा मैं कि जैसे लोगों से जुड़ा हुआ आपने और बोलना चाहता हूँ। बाबा रामदेव ने शुरू किया हरियाणा में, जो हमारे चारों वेद हैं, जैसे कि हम सभी को थोड़ा थोड़ा करके पढ़कर
वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनसाइट्स। आपके इनसाइट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कमी है अपनी इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत, बहुत बड़ा कमी है, क्योंकि बाकी जगह तो जैसा हमने मिशनरी में पढ़ा है, हमने भी मिशनरी में पढ़ा है एंग्लो इंडियन स्कूल में, तो वहां पर तो बाइबल पढ़ाया ही जाता है साथ साथ ही। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम जब स्कूल्स में जाते हैं ना, कॉलेजेस में जाते हैं, अब भगवत गीता पढ़ाओ, हम आकर हम आपकी मदद करेंगे, पर लोग कहते हैं हमारा तो सेक्युलर कंट्री है, हम ये सारा कुछ हम एंटरटेन नहीं कर सकते हैं, हमारा सेक्युलर है, तो मना करते हैं। तो बेवकूफी है इतिहास की। बट मेरी कहना ये है कि गवर्नमेंट में परिवर्तन आने तक वेट नहीं कर सकते हैं हम। डेफिनेटली हम गवर्नमेंट के अंतर्गत कुछ परिवर्तन लाने की, अभी जैसा कि इस्कॉन की तरह से प्रपोजल तो जा रहे हैं हमारी इंडियन हिस्ट्री को बदलने के लिए, और इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या चैप्टर्स इंक्लूड करने चाहिए हमारे वक्तों के विषय में, महाभारत रामायण इत्यादि चीजों के विषय में। बट वो सारे चीजें तो पैरेलली चलेगा। बट the best thing that we can do in service to India और भारत संस्कृति के प्रति सबसे बेहतरीन उपहार आपकी ही है। सब लोग देने के लिए तैयार है या नहीं? कि first of all we ourselves should adopt this culture। हम खुद कर नहीं रहे हैं, फिर हमें कहे कि आप तुम करो, अरे तुम करो, तुम करो, अरे करे क्या बंदा, पहले तुम तो करो। तो इसलिए the best gift that we can give to the society is to transform one's own self। ये सबसे बड़ा समाज सेवा है। समाज में जितने प्रकार की प्रॉब्लम्स है, हम आज तक प्रॉब्लम का ही हिस्सा तो बने हैं ना। Why not attempt to become a part of the solution? समाधान क्यों ना बने, समाधान की हिस्सा क्यों ना बने। तो इस प्रकार से जब आध्यात्मिकता को अपनाएंगे, भारतीय संस्कृति का अपनाएंगे, then आप will become a part of the solution, समाधान के भाग बन जाएंगे। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन है, डेफिनेटली हम सभी मिलकर ये प्रयास करेंगे गवर्नमेंट को परस्यू करने के लिए और समाज के अंतर्गत इस प्रकार के परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। For that, first of all, आप सभी हर एक व्यक्ति गंभीरता पूर्वक आध्यात्मिकता को अपनाइए और चीजों को आगे बढ़ाइए अपने जीवन में। सबसे पहला क्योंकि बाकी समाज को परिवर्तन करना तो आपकी क्षमता, मतलब आपके हाथ में नहीं है, कम से कम आप अपने आप को तो परिवर्तन कर सकते हैं, अपने आप को तो परिवर्तन कर सकते हैं। तो सबसे पहला शुरुआत करो समाज सेवा अपने से। तो हम सभी एक एक व्यक्ति इस प्रकार से आध्यात्मिकता गंभीरता से स्वीकार करें, जिस प्रकार से आज हम अभी क्या कर रहे हैं। जैसा एक प्रकार से बिकॉज मैं आध्यात्मिकता का पालन करने का कम से कम प्रयास तो कर रहा हूँ, एंड उसी प्रकार से कई लोग कर रहे हैं, तो उसी की वजह से तो आप सभी लोगों को एकत्रित करके लाकर आप लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है ना। अगर मान लो कि अगर जो व्यक्ति आपको बुला रहा है अगर वो खुद ही प्रैक्टिस नहीं कर रहे, देन आपको खुद भी विश्वास नहीं आएगी, अरे एक खुद पालन नहीं कर, मैं क्या करूं। तो इसलिए आप सभी प्रैक्टिस करिए, देन वी कम टुगेदर, हमारा टीम और बड़ा होगी, देन फिर हम और परस्यू करेंगे। तो इस प्रकार से ऑलरेडी हमारी मतलब हमारी शास्त्रों की अध्ययन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक पूरा डिपार्टमेंट ही बन गई, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी के अंतर्गत। वहां पर आप पीएचडी भी कर सकते हैं। हमारा आचार्यों के द्वारा लिखी गई षट संदर्भ पे आप पीएचडी कर सकते हैं, वहां पर भारत में नहीं कर सकते। वहां पर भगवत गीता पढ़ाया जाता है सिलेबस के अंतर्गत, तो सारा कुछ हम भारत के अंतर्गत कर सकते हैं, बट वी नीड योर हेल्प। हमें आप सभी लोगों की मदद चाहिए। क्या आप सभी लोग आगे आएंगे हमें मदद करने? आप सभी लोग आगे आइए, हमें मदद बहुत चाहिए, हमें बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट हम मेंबर्स ना। अगर आप सभी लोग साथ आएंगे, then we can expand like anything। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। जब हम खुद पहले नोएडा में जान के, तब तो हम
कविता शुरू करेंगे, अभ्यास करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी समझिए कि ये कोई सेंटिमेंटल चीज नहीं है, इसलिए आप हम ये नहीं कह रहे कि आप बस करो करके, अगर हमारे रिकमेंडेशन को पहले समझो, कि क्या कहा जा रहा है, कितना लॉजिकल है, कितना साइंटिफिक है, कितना रीजनेबल है सब चीजें, कितना रेलेवेंट है हमारे जीवन से। इन चीजों को समझकर आप फिर आगे बढ़ाएंगे, देन एक्सेप्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्विंस योरसेल्फ। तो यही हमारे संदेश है। थैंक यू, आपकी बहुत अच्छा मतलब इस प्रकार की इंसाइट्स और कम से कम इस प्रकार विचारधारा होना ही बहुत दुर्लभ है। बहुत धन्यवाद, आप जुड़े रहिए। एनीबॉडी एल्स, किसी और कोई प्रश्न है? नहीं तो हम पूछेंगे। स्पीड अप में बस आपको भक्तों को संगति रूपक एक चल रहे हैं, तो हम आपको एलिवेटर आप बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। तो एलिवेटर भक्तों के संग आएंगे, फिर यहाँ पर जो कुछ भी आपको बताए जा रहे हैं, when you start practicing it, जो भी आपको फैसिलिटेटर गाइड कर रहे हैं उनसे आप बात करेंगे तो विल हेल्प यू आउट, वो आपको मदद करेंगे किस प्रकार से आप अपनी प्रोग्रेस को स्पीड अप करना चाहेंगे। तो आपको कई सारे ठीक है ये करो अभी, तो वो सारी चीजें आप करते जाएंगे। हाँ डेफिनेटली, देखिए मतलब सभी लोग मेरे ख्याल में नहीं बन सकते, डरो नहीं। कई लोग मुझे देख कर ही डर जाते हैं, अरे ये इतना समझा बुझा कर उनकी तरह तो नहीं बना देंगे। हम रिसेंटली एक व्यक्ति से मिले, तो बहुत बड़ा बिल्डर है नोएडा में, उनकी कई सोसाइटी था उन्होंने बनाया। तो अपने दोनों बेटों को और पत्नी को लेकर आए थे, तो हम मिल रहे थे, हमारे डिवोटी बात करते हुए उनसे बात कर रहे थे, उनकी एंटीना खड़ा हो, जी आप लोग ज्यादा मत भूलेगा। ये तो इतना मुश्किल से इतना बड़ा एम्पायर मैंने खड़ा किया, तो पता नहीं कहाँ चले जाएगा। वही प्रॉब्लम है कि पीपल वांट भगत सिंह, बट दे डोंट वांट देयर चाइल्ड टू बिकम भगत। लोगों को आजादी लाने के लिए तो भगत सिंह चाहिए, आजादी चाहिए, बट भगत सिंह अपना नहीं होना। अरे इनका पड़ोस वाला उनका ले जाओ, बट इसका मतलब सो डोंट फियर। आप जैसा यहाँ पर भी कई ऐसा गृहस्थी है क्योंकि फैमिली है एंड फिर अपना परिवार, वैसे 99.99% इस्कॉन के अंतर्गत यही है, क्योंकि अपने परिवार से पाल रहे हैं, अपने जॉब कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ भक्ति भी कर रहे हैं एंड फिर और अपना प्रसार भी कर रहे हैं, एवरीथिंग दे आर एबल टू। उसी प्रकार से आप लोग भी कर सकते हैं, इसी प्रकार से जिनको उस प्रकार से रहेंगे तो उस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे मैक्सिमम लोग तो उसी प्रकार से ही चलते हैं। तो आप अपने जीवन के साथ इसको बैलेंस करने का तरीका हम आपको सिखाएंगे। आप अपने जॉब को, अपने एजुकेशन को, अपने फैमिली को बैलेंस करते हुए भक्ति कैसे करनी चाहिए। हम केवल आपके जीवन से गंदगी निकाल देंगे। जो म्युनिसिपैलिटी वैन की बट पेमेंट ये ना, बस कचरा उठाने देंगे, उसे उठाने देंगे, ठीक है वैन लेकर आएंगे।
और यस स्टूडेंट्स में क्या होता है कि बच्चे पढ़ते रहते हैं, उनको बचपन में लगता है कि जो साइंस ले लेंगे तो कुछ हो जाएंगे, फिर उनको लगता है अच्छे कॉलेज में पढ़ लेंगे तो खुश हो जाएंगे, फिर उन्हें लगता है पीएचडी कर लेंगे तो खुश हो जाएंगे, पर जब वो पढ़ रहे होते हैं उस दौरान वो खुश नहीं होते हैं। वेरी गुड। मतलब बच्चों में दूसरा में मैंने ये देखा कि अधिकतर बच्चे बस एक ही साल सोचते हैं कि मुझे डिप्रेशन होता है, कोई सुसाइड कर लेते हैं, वो कोई तो बस माँ बाप के डर के अंदर से पढ़ रहा है, उनके क्या करना चाहिए? जो बच्चों में दुख है, स्टूडेंट्स में दुख है, तो दूर कैसे कर सकते हैं? थैंक यू फॉर एक्सप्रेसिंग योर हार्ट। कई लोग डरते आपने हृदय को व्यक्त करने के लिए। हमारा भी पेरेंट्स हमें भी यही धोखा दिए थे। जब हम 10th क्लास में थे तब कहा करते थे मजा है, तो ठीक है पढ़ ले, तो पढ़ा, तो फिर गया कॉलेज में, फिर कॉलेज में फिर कहा कि बेटा अभी एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, वही असली अपने जीवन की टर्निंग पॉइंट। आप अच्छा से पढ़ो, आपको बिट्स पिलाने में ही आईआईटी में सीट आएगी, देन नौकरी तो आप कंपनी मान लेते आपके पैरों पे गिर जाएगा सब दे दे सब जा। तो ठीक है पढ़ लेते तो पढ़ा, तो हमें पिलाने में सीट 4 मार्क मिस हो गया। तो फिर उसके बाद इंजीनियरिंग करा, तो फिर इंजीनियरिंग में भी कहा देखो अभी गेट आएगी, गेट एग्जाम अब अच्छा से तैयारी करके लिख देना, एक सीट आएगी तो फिर उसके बाद बिल्कुल जबरदस्त। तो फिर हमने गेट के लिए मेहनत किया, फिर पढ़ा और फिर फाइनली गेट में गया, फिर एमटेक भी कर लिया आईआईटी में। फिर आईआईटी का कई सपना दिखाई है कि आईआईटी में ये होता है, वो होता है, ये होता है, वो आता है। फिर बाहर जाकर देखा है कि वहां पर भी यही हाल है जो बाहर था। फिर आईआईटी के बाद फिर हम सोचे ठीक है नौकरी लग जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, तब हाथ में पैसा आएगी, हाथ में पैसा आएगी तो मजा लो सकती हूँ। तो फिर इसके बाद प्लेसमेंट हो गया, तो कंपनी में गया। तो कंपनी में जाने के बाद पहला हमें लगने लगे यार अभी तो बिल्कुल मजा है। कब लोग की शुरुआत हुई हमारी कॉलेज लाइफ में, ऐसा था, हम ऐसे गपचुप मारते थे, दिन स्टैंड में जाया करते थे, ये करते थे, वो मजा लेते थे। फिर कॉलेज पढ़ा, बिल्कुल बचपन में ऐसा था। बचपन से वो जॉब के लिए वो निरीक्षण में थे, और ये जॉब मिलने के बाद happiness in this world is only in expectations but not in reality. इस दुनिया के अंतर्गत आनंद केवल एक्सपेक्टेशंस नहीं है, असलियत में नहीं है। केवल आनंद की गाजर को अपने मुंह के सामने लटका कर गधे की तरह दौड़ाते रहते हैं, बट असलियत में गाजर कभी नहीं मिलेगा। तो इसलिए स्टूडेंट लाइफ में भी वही गाजर दिखाई जाती है। गधे को चलाने के लिए ना, गधे वैसे कहने पे नहीं चलती। गधे को क्या किया जाता है, गधे के सिर पे एक गाजर लटका दिया जाता है। गाजर लटका दिया जाता है सिर पे, मतलब एक लकड़ी टांग के फिर गाजर को लटका दिया। गधे को लगता है कि एक कदम में आगे बढ़, उसी गधे की तरह हमें लगता है 10th क्लास से +1 में चले जाएंगे तो भला हो जाएगा, गाजर मिल जाएगी। गाजर तब भी नहीं मिला, फिर +1 से इंजीनियरिंग भी नहीं मिला,
मास्टर तब भी नहीं मिला, मास्टर की जॉब तब भी नहीं मिला। आगे भी आगे आगे चल रही है, गाजर कभी मुंह में नहीं आने वाली, बस दिखाने के लिए और चलाने के लिए गाजर है दुनिया। And this is what is the happiness of this world is. इसलिए हमारी कहना ये कि इस प्रकार से कई लोग हमारे पास आ रहे हैं, कोई अपना हृदय खोलकर बता पा रहे हैं, कई लोग अपने हृदय में सड़ जाते हैं। फ्रैंकली मैं बताऊं कि ऑलमोस्ट एवरीवन इन टुडेज वर्ल्ड, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक, हर एक व्यक्ति तनाव में है। वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते और डॉक्टर के पास जाने के लिए भी डरते हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने के बाद कोई आने पे कोई अगर पूछेंगे तो कोई आपका कहा गया, हम तेरे साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, कैसे लगेगा? साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर मतलब अमेरिका वैसे देशों में तो कॉमन है साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर आना, इसमें तो कॉमन है, बट यहाँ पर कितना कॉमन है? इस प्रकार से पीपल आर वेरी मच इनटू स्ट्रेस। देखिए कितना दवाई भी ले लो आप, स्ट्रेस इज नॉट गोइंग टू बी रिलीव्ड। एकमात्र तरीका यही है टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी, लीड अ लाइफ अंडर इट्स डायरेक्शन, आध्यात्मिकता के निर्देशन के अनुसार जीवन जीना। भगवान ने हमें जिस प्रकार के जीवन जीने के लिए दिया है वो कंप्लीट स्ट्रेस फ्री लाइफ है। देखिए कर्म के सिद्धांत जो होता है, केवल और केवल कर्म के सिद्धांत समझने मात्र से व्यक्ति का सारा स्ट्रेस निकल जाता है। समझने मात्र से सारा स्ट्रेस रिलीव हो जाता है, केवल कर्म के सिद्धांत को समझने से। एंड ये चीजें लोग समझते नहीं, क्योंकि पढ़े नहीं, ना कोई समझाने वाले हैं, इसलिए पीपल आर आर्टिफिशियली लिविंग देयर लाइव्स एंड दे आर पुटिंग देमसेल्व्स इनटू लॉट ऑफ स्ट्रेस। तो इसलिए आप इस प्रकार सेशंस में आप लगातार आते रहेंगे, फिर ये चीजें हम आपको आगे जाकर बताएंगे कर्म के विषय में और इत्यादि, जिनसे आप एक सच में स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं, अपने स्टूडेंट लाइफ अच्छा से पढ़ाई भी कर सकते हो और अपना स्ट्रेस फ्री लाइफ भी जी सकते हैं। बट कीप योरसेल्फ कनेक्टेड टू स्पिरिचुअलिटी, बस इतना करिए, देन वी विल गारंटी यू, हम गारंटी देंगे आप निश्चित रूप से अपने तनाव से आप निकल सकेंगे। नहीं तो ये तो बिल्कुल सच बता रहे हैं, हमारी जब में हम पढ़ते थे, हमारी हॉस्टल में हमारा रूम के बगल में, क्योंकि हम मास्टर से बिल्कुल बगल वाले हैं, वो व्यक्ति आत्महत्या कर लिया। तो हमें तो बहुत शॉकिंग लगा, क्योंकि उसके पहले दिन हम दोनों मिलकर फोटो खिंचवाए थे। फिर बाद में वही फोटो देख के हमें डर लगना रही कि आप है, क्योंकि उसके पहले तो हमें पता ही नहीं था कि व्यक्ति अगले दिन लटकने वाले। तो हमें तो हमारे तो नौकरी लग गए, तो फिर हम ट्रेन लेकर हम घर जा रहे थे, फिर बीच में कॉल आया कि देखिए आपको फ्रेंड जो है आत्महत्या कर लिया। तो कारण ही कुछ है ही नहीं था उनके जीवन में मतलब आत्महत्या करने के लिए। ना कोई धन की कमी था, उनका एक लौता बेटा है, कुछ धन है, परिवार है, सब कुछ है, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं है। केवल इस बात से उन्होंने आत्महत्या कर ली कि मुझे नौकरी नहीं मिली। नौकरी नहीं मिलने, IIT कानपुर में पड़ा हुआ व्यक्ति को नौकरी क्यों नहीं मिली बताइए? कहीं ना कहीं 50,000 तो मिली है, कुछ भी नहीं है, तो कॉलेज जाऊँ तो 50,000 तो मिली है। बट हमारे मूर्ख, हाँ, उनको केवल प्लेसमेंट स्टार्ट होकर केवल 25 दिन हुआ बस। प्लेसमेंट कब तक चलता है? कितने सैकड़ों कंपनी आती, बट फिर भी 25 दिन के बाद उनको सहने की क्षमता नहीं रहा, लटक गए।
हर साल IIT कानपुर में, IIT दिल्ली में एक व्यक्ति, कम से कम एक व्यक्ति तो मरेगा सुसाइड करेंगे, बिकॉज पीपल डोंट नो हाउ टू फेस लाइफ। जीवन को सामना करने का विधि पता ही नहीं। एक व्यक्ति IIT कानपुर में, वो चौथे साल में थे, वो तीनों सालों में वो टॉप किए थे। IIT कानपुर में वहां पर ग्रेडिंग सिस्टम है ABCD। फिर उनको फोर्थ ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर, फोर्थ ईयर की सेकेंड सेमेस्टर है, उनको एक सब्जेक्ट में B ग्रेड आया। B ग्रेड आया, फिर अगला दिन देखा तो व्यक्ति आत्महत्या कर। वैसा व्यक्ति जो कि अपने जीवन में कितना छोटा सा फेल्यूर को भी विथस्टैंड नहीं कर सकते हैं, हजम नहीं कर सकते हैं, हाउ कैन ही एवर बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन हिज लाइफ? अपने जीवन में कौन सा सफल व्यक्ति बन पाए? डेफिनेटली क्रैमिंग नॉलेज तो है, मतलब चीजें रट लेने की शक्ति तो सामर्थ्य तो है, जीवन जीने की सामर्थ्य नहीं। इसलिए आज की यूनिवर्सिटी एजुकेशन में हमें केवल रटने की सामर्थ्य सिखाई जाता है। कितना रटो, फिर उसके बाद एग्जाम पेपर में जाकर वॉमिट करो, पेट में खूब भर दो, फिर वॉमिट कर दो, फिर 5 दिन के बाद पूछा जाए बेटा इस प्रश्न का उत्तर बताओ। एग्जाम तो हो गया ना, एग्जाम के बाद क्या लेना देना नॉलेज। इसलिए कंपनी इंडिया में स्किल्ड पीपल नहीं है। हमारे भारत में जॉब्स की कमी नहीं है। कंपनियों की कहना ये है हमारे पास जॉब्स तो खूब है, बट करने वाला लोग नहीं है। क्योंकि है तो बहुत, बट करने की हासिल नहीं है। Anyways, so spirituality से connected रहने पे definitely you'll be relieved of stress, not a stress. इसके आधार में क्या है? प्रसन्न चेत सो ही आस हो। प्रसन्न चित्त होगा व्यक्ति satisfied and content and happy from nothing. कि बाहरी चीजों का कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता। Any last question? Zoom पे क्वेश्चन है। Bhagwan is saying that I will only be available for bhakti and one can achieve through bhakti. Then what is the importance of Gyan Marg or Karma Marg? ज्ञान और कर्म मार्ग की क्या जरूरत? जैसा कर्म योग के विषय में आपने सुना होगा, ज्ञान योग के विषय में सुना होगा, भक्ति योग के विषय में सुना होगा। जब भगवान स्वयं कहते हैं भक्ति के द्वारा ही कोई व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है, फिर कर्म योग और ज्ञान योग की क्या रिलेवेंसी है, इसकी क्या जरूरत है? तो इसके विषय में बात यही कि कर्म योग और ज्ञान योग की केवल उतना ही उपयोगी है, यूटिलिटी है कि वो हमें भक्ति योग तक पहुंचाने के लिए। They only meant to help us get to भक्ति तक पहुंचाने की हमें मदद कर सकती है। आगे ले जाने की, भगवान तक ले जाने की क्षमता ना कर्म योग में है ना ज्ञान योग में, केवल भक्ति में, बाकी अन्य चीजों में है। इसलिए वो दोनों चीज केवल भक्ति तक लाने की काम करेगी। एंड कर्म का, बिकॉज अगर कोई व्यक्ति जिनको काम करने में बहुत इंटरेस्ट है, फिर वैसा व्यक्ति को कहा जाए तो जी सब छोड़कर आप ही आ जाओ ना मेरी तरफ, देन वो तो भाग जाएगा। प्रभु जी तो उनके साथ रहेंगे तो बना देंगे मुझे, तो मैं नहीं आऊंगा प्रभु जी।
फिर अगली बार फोन ही नहीं उठाएंगे। तो इसलिए वैसा लोगों को कर्मयोग के विषय में कहा बताया, वैसे लोगों को कर्मयोग का ही अभ्यास करना चाहिए। कर्मयोग मतलब जो अपने जीवन के संबंध में जो भी कार्य है वो करते हुए अपने फलों को भगवान की सेवा में अर्पण करते हुए अपने कार्यों को भगवान की कहना के अनुसार हम करें, कहने के अनुसार करें। इस प्रकार से हम तो देन फिर आप अपना परिवार भी संभाल सकते हो, अपने जॉब भी कर सकते हो, फिर साथ ही साथ आप भक्ति में भी जुड़े रहिए, आध्यात्मिकता में। इस प्रकार से वीकली सेशन होता है, वीकली सेशन में आइए। आप अपने घर पे भी कैसे प्रैक्टिस करना है, क्या करना है, वो भी हम मंत्र मेडिटेशन वगैरह सिखाएंगे, मंत्र मेडिटेशन इत्यादि, नाम जप, नाम संकीर्तन, तो सारा कुछ करिए। दिस हाउ यू कैन बी। तो इस प्रकार से कर्मयोग और इसी प्रकार से ज्ञान इत्यादि चीजों का अपने रेलेवेंसी बेसिकली इट विल हेल्प अस कम टू भक्ति। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर हम सुना प्रश्न है तो फिर बाद में हम चर्चा करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे, जैसा पर्सनली हम बात कर सकते। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप लोगों को ये लोकेशन अच्छा लगा? तो यहाँ रहेंगे? ये खरीद में तो नहीं मिलने वाली है हर जगह, ये नोएडा नहीं है खरीदने के लिए। So this is, यहाँ पर बात हमें भक्ति करने से प्राप्त होगा। आप खूब भक्ति करो, then Krishna will help you come here। नहीं तो खूब लोग जमीन तो खरीदते हैं बट रहते तो दिल्ली में, तो वही हो जाएगी अपनी हाल में। तो आप अच्छा भक्ति करो, आध्यात्मिकता करिए, देन भगवान आपको बुलाएंगे। जैसा अभी भी बुलाए हैं सभी को। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री गोकुल धाम की, महादेव की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सदानंद महाराज की, की। हरे कृष्णा। तो आप में से कौन कौन वेदांत चैतन्य प्रभु को पहले से जानते हैं? हाथ रेस कर सकते हैं। थैंक यू। और आप में से कौन कौन वेदांत चैतन्य प्रभु को आज पहली बार सुन रहे हैं? ओके, वेरी नाइस। तो जो पहली बार सुन रहे हैं उनको प्रभु जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। बाकी जो सुन चुके हैं वो तो प्रभु जी को बहुत अच्छे से जानते हैं। हिज ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु के बारे में बहुत कुछ बोला जा सकता है, बट समय को देखते हुए मैं शॉर्ट में अगर बताऊं तो प्रभु जी हमारे इस्कॉन नोएडा मंदिर जो है उसके प्रेसिडेंट हैं। और प्रभु जी ने अपना एजुकेशन जो है स्वयं, आपको इतनी सारी स्टोरी सुनाई, स्वयं IIT कानपुर से एमटेक किया और उसके बाद इन्होंने MNC कंपनी में 3 साल तक सैमसंग में जॉब किया। और उसके बाद प्रभु जी को जब अपने जीवन का उच्च लक्ष्य उनके मनन करने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ, तो प्रभु जी ने फिर पूर्ण रूप से अपने जीवन को समर्पित किया समाज की, उस समाज में हम सब भी आते हैं, इसकी निस्वार्थ सेवा करने के लिए। तो प्रभु जी शुरू में जब इन्होंने इस्कॉन ज्वाइन किया तो 5 वर्ष तक इस्कॉन यूथ फोरम IYF के डायरेक्टर रहे प्रभु जी। उसके बाद 2 वर्ष तक प्रभु जी ग्रेटर नोएडा में जाकर वहां पर प्रभु जी ने नया सेंटर स्टैब्लिश करके वहां उस सेंटर के मैनेजर रहे। और उसके बाद प्रभु जी लौट कर आए और अभी इस्कॉन नोएडा के पिछले 4 वर्षों से प्रभु जी प्रेसिडेंट हैं और प्रभु जी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। कुछ उदाहरण दें, जैसे कुछ लोग समाज कल्याण की चीजों को बहुत प्रेफर करते हैं, तो प्रभु जी ऐसी भी कई सेवाएं चलाते हैं। जैसे कि जब लॉकडाउन था और लोग घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहते थे, तो प्रभु जी ने इस्कॉन में एक पूरा एक किचन चलाया जिसमें डेली कम से कम 5000 प्लेटें बनकर और जिन लोगों के पास बनाने की व्यवस्था नहीं थी उन तक पहुंचाकर उनकी हेल्प कर रहे थे। और आज भी डेली मंदिर में कई 100 प्लेट्स बनती हैं और डेली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। कभी भी ऐसी सेवाओं में आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो आ सकते हैं और अपने रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर्स को संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा प्रभु जी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और कॉर्पोरेट्स में बहुत सारे स्ट्रेस मैनेजमेंट और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट रिलेटेड सेमिनार्स देते हैं और बहुत सारे लोगों की लाइफ को स्ट्रेस से बाहर करने में उनकी हेल्प करते हैं। और बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, स्कूल्स के प्रोग्राम्स हैं,
या फिर छोटे बच्चों के स्कूल्स में प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विसेज, बहुत सारी सेवाओं में प्रभु जी आगे लेके उनको मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सो ये बहुत ही ब्रीफ में मैंने बताया प्रभु जी के बारे में आपको, ताकि आपको आइडिया हो कि आप किससे सब आए थे। ये भी बहुत आवश्यक है स्पीकर को जानना, और बहुत अच्छी क्वालिटी के आपने प्रश्न पूछे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर जो थैंक्स बोलने का हमारा जो तरीका है वो क्या है, तो हम 3 बार हरि बोल बोलकर प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। जोर से हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू सो मच शास्त्री जी। तो अब हम यहाँ से एक जस्ट नियर, जैसे कि प्रभु जी हमें बता रहे थे ब्रह्मांड घाट के बारे में, तो हम ब्रह्मांड घाट जाएंगे और वहीं पर हम हमारा प्रसाद, जो लक्ष्य प्रसाद है वो वहां पर, और फिर हम ब्रह्मांड घाट करने के लिए चलेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट करेंगे, कोऑर्डिनेटर्स की सेवा ले सकते हैं। हरे कृष्णा टू ऑल डिवोटीज। मेरा एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, हम लोग यहीं पे प्रसाद पाएंगे, तो आसपास में ही रहिए, बस थोड़ी ही देर में प्रसाद आ रहा है, फिर यहाँ पे प्रसाद वितरण होगा।